بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قول کے ساتھ نافرمانی۔ قول کے ساتھ نافرمانی یوں ہوگی کہ وہ ظالم بادشاہ کے لیے دعا کرے گا یا اس کی تعریف کرے گا، یا وہ جو ناحق بولے گا یہ اس کی تصدیق یا تو اپنے صریح قول سے یا اپنا سر ہلا کر یا اپنے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں کر کے کرے گا، یا اس کے لیے محبت، دوستی اور ملاقات کا اشتیاق ظاہر کرے گا اور اس کی عمر لمبی ہونے اور اس کے زندہ رہنے کی حرص ظاہر کرے گا، کیونکہ غالب یہی ہے کہ وہ اسلام پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ اس سے کلام کرے گا اور اس کا کلام ان باتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ ظالم کے لیے دعا کرنا کیسا؟ ظالم بادشاہ کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ عزوجل تیری اصلاح فرمائے، یا اللہ عزوجل تجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ عزوجل اپنی اطاعت میں تیری عمر دراز فرمائے۔ یہ اور اس سے ملتی جلتی دعائیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اسے آقا و مولا وغیرہ کہہ کر اس کی حفاظت، درازی عمر، نعمتوں کی تکمیل اور ہمیشگی کی دعا کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا لظالم بالبقاء فقد احب ان یصلح فی ارضہ، یعنی جس نے کسی ظالم کے باقی رہنے کی دعا کی، اس نے یہ پسند کیا کہ اللہ عز و جل کی زمین میں اس کی نافرمانی کی جائے۔ غضب الہی کو ابھارنے والا عمل۔ اگر اس نے دعا میں مبالغہ کیا اور اس کی تعریف ایسے اوصاف کے ساتھ کی جو اس میں نہیں ہیں، تو یہ جھوٹا منافق نیز ظالم کی عزت و توقیر کرنے والا ہوگا، لیکن تین گناہوں کا مرتکب ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت شان ہے، ان اللہ لا یغضب اذا مدح الفاسق، یعنی جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ عز و جل غضب فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، من اکرم فاسقا فقد اعان علی ہدم الاسلام، یعنی جس نے فاسق کی عزت کی تو ضرور اس نے اسلام کے ڈھا دینے پر مدد کی۔ ظالم کی تعریف کا حکم۔ پھر اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی باتوں کی تصدیق کرے گا اور اس کی تعریف و توصیف کرے گا تو وہ اس تصدیق اور گناہ پر مدد کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، کیونکہ ظالم کی تعریف و توصیف کرنا گناہ پر مدد دینا ہے۔ نیز یہ گناہ میں رغبت دلانے کو ہوا دینا ہے، جیسا کہ تکذیب، مذمت اور برائی بیان کرنا، کسی گناہ سے روکنا اور اس کے اسباب کو کمزور کرنا ہے، اور گناہ پر مدد کرنا بھی گناہ ہے اگرچہ ایک آدھی بات کے ساتھ ہو۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ سے ایسے ظالم کے بارے میں سوال کیا گیا جو جنگل میں ہلاکت کے قریب ہو کہ کیا اسے پانی کا ایک گھونٹ پلا سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اسے مرنے کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ اسے پانی پلانا اس کی مدد کرنا ہوگا۔ جبکہ بعض نے فرمایا اسے اتنا پانی پلا دیا جائے جس سے زندگی بچ جائے اور پھر اس سے منہ پھیر لے۔ ظالم کی تعریف میں تجاوز کا حکم۔ اگر وہ اس کی تعریف و توصیف سے تجاوز کر کے اس سے محبت، شوق ملاقات اور زندگی کی بقا کا اظہار کرے، پس اگر وہ اس اظہار میں جھوٹا ہے تو جھوٹ اور نفاق کے گناہ کا مرتکب ہوا، اور اگر سچا ہے تو اس نے ظالم کی عمر درازی کو پسند کر کے گناہ کیا، اور اس کا حق تو یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے لیے اس سے نفرت کرے، کیونکہ اللہ عز و جل کے لیے نفرت کرنا واجب ہے، اور گناہ پسند کرنے والا اور اس پر راضی ہونے والا گناہ گار ہے۔ اور ظالم سے محبت کی دو صورتیں ہیں۔ اگر محبت اس کے ظلم کی وجہ سے کی تو اس کی محبت کے سبب گناہ گار ہوگا، اور اگر محبت کسی اور وجہ سے کی تو اب اس حیثیت سے گناہ گار ہوگا کہ اس نے اس سے نفرت نہیں کی، کیونکہ اس پر واجب تھا کہ اس سے نفرت کرے۔ اگر کسی شخص میں برائی اور بھلائی دونوں جمع ہوں تو لازم ہے کہ بھلائی کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے اور برائی کی وجہ سے نفرت۔ عنقریب کتاب الاخوات والمتحابین فی اللہ، بھائی چارے اور رضائی الہی کے لیے محبت کرنے کے باب میں نفرت و محبت کے جمع ہونے کی وجہ آئے گی۔ ظالم کی صحبت کا کم از کم نقصان۔ ظالم بادشاہ کے پاس جانے والا اگر بیان کردہ تمام باتوں سے محفوظ رہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں، تو وہ کم از کم اس فساد سے نہیں بچے گا جو اس کے دل میں پیدا ہوگا، کیونکہ جب وہ اسے نعمتوں اور آسائشوں میں دیکھے گا تو خود پر اللہ عز و جل کے انعامات کو حقیر سمجھے گا، اور یوں وہ اس حدیث شریف میں وارد ممانعت کا مرتکب ہوگا۔ چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت بنیاد ہے، یا معاشر المہاجرین لا تدخلوا علی اخل الدنیا فإنها مسخطات للرزق، یعنی اے مہاجرین کے گروہ، دنیا داروں کے پاس نہ جاؤ کیونکہ یہ رزق کی ناراضی کا باعث ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اس کے وہاں جانے سے دوسرے بھی اس کی اقتداء کریں گے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر ظالم کے گروہ میں کثرت کا سبب بنے گا۔
चौथी ये कि अगर वो उसे अपनी रौनक का सबब समझता है तो ये उनकी रौनक बनेगा। ये तमाम बातें या तो मकरूह हैं या हराम। 2 अफराद की बैत नहीं करूँगा। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह को वलीद और सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क की बैत के लिए बुलाया गया तो उन्होंने फरमाया, जब तक रात दिन बदलते हैं मैं 2 अफराद की बैत नहीं करूँगा, क्योंकि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की बैत करने से मना फरमाया है। लोगों ने अर्ज़ की कि एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे से निकल जाइएगा। फरमाया, खुदा की कसम नहीं, कहीं लोग मेरी पैरवी न करें। चुनांचे आप रहमतुल्लाह तआला अलैह को 100 कोड़े लगाए गए और टाट का लिबास पहनाया गया। बादशाह के पास जाने के 2 उज़र। जालिम बादशाह के पास सिर्फ 2 उज़रों की वजह से जाना जायज़ है। नंबर 1, बादशाह की तरफ से हाजिरी का हुक्म ज़रूरी हो, ना कि इज़्ज़त व तकरीम का, और उसे मालूम हो कि अगर नहीं जाएगा तो अज़ियत दी जाएगी या उसकी वजह से राया की अताअत में खराबी होगी और निज़ाम सियासत बिगड़ जाएगा, तो उसके लिए हुक्म की तामील वाजिब है, लेकिन अताअत के लिए ना जाए बल्कि मखलूक की मसलहत की रियायत करते हुए जाए ताकि हुकूमत में इंतशार ना हो। नंबर 2, किसी मुसलमान से या अपनी ज़ात से जुल्म दूर करने के लिए जाए, या तो अर्ज़ो गुजारिश के साथ या फरियाद और जुल्म की शिकायत करके समझाने के तौर पर जाए। इस उधर से जाने की रुख्सत है बशर्ते कि वो झूठ बोले, ना उसकी तारीफ करे और ना ही ऐसी नसीहत करना छोड़े जिसके कबूल होने की उम्मीद हो। ये जालिम बादशाहों के पास जाने का हुक्म है। दूसरी हालत की तफसील और अहकाम। जालिम बादशाह मिलने आए तो क्या करें। दूसरी हालत यह है कि जालिम बादशाह तुमसे मिलने आए तो सलाम का जवाब देना ज़रूरी होगा, जबकि लिए उसके लिए खड़ा होना और उसकी इज़्ज़त करना उसके इकराम के मुकाबले में हराम नहीं है, क्योंकि वो इल्म और दीन की इज़्ज़त करने की वजह से ताज़ीम का मुस्तहिक हो गया है, जैसा कि वो जुल्म की वजह से दूरी का मुस्तहिक होता है। बस इकराम के बदले इकराम और जवाब देना सलाम के बदले में हो जाएगा। अलबत्ता अगर बादशाह अकेला आए तो उसके लिए खड़ा ना होना ही मुनासिब है, ताकि उस पर दीन की इज़्ज़त और जुल्म की हकारत ज़ाहिर हो, और ये भी ज़ाहिर हो कि उनका गुस्सा दीन की वजह से है और उनका उससे मुंह फेरना इस वजह से है कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने उससे आराज़ फरमा लिया है। अगर वह कुछ लोगों के साथ आए तो आम के सामने वालियाने हुकूमत के मुकाम व मर्तबे का लिहाज रखना ज़रूरी है और उस नीयत से खड़े होने में कोई हर्ज नहीं। फिर अगर जानता हो कि मेरे खड़ा ना होने की वजह से राया में फसाद बर्पा नहीं होगा और बादशाह के गज़बनाक होने से मुझे अजियत नहीं पहुँचेगी, तो खड़ा ना होना बेहतर है। बादशाह को नसीहत करना वाजिब है। बादशाह खुद मिलने आया तो मुलाकात के बाद उसे वाज़ो नसीहत करना उस पर वाजिब है। अगर बादशाह ऐसे काम का मुर्तकिब हो रहा है जिसके हराम होने का उसे इल्म नहीं और इस बात की उम्मीद हो कि अगर बादशाह को इस फेल के हराम होने का इल्म हो जाए तो वो हराम फेल छोड़ देगा, तो उस पर वाजिब है कि उसे बताए। अलबत्ता वो अफ़ाल जिनके हराम होने का उसे इल्म है, जैसे ज़ना, जुल्म वगैरह, तो उसके जिक्र का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि जिन गुनाहों में वो मुब्तला है अगर ये गुमान करे कि उसको डराना असर करेगा तो उन गुनाहों से डराना चाहिए। अगर वह शरीयत के मुताबिक ऐसा तरीका जानता हो जिससे जालिम को किसी गुनाह के बगैर मकसद हासिल हो जाएगा तो उस पर लाजिम है कि वो उसकी उस सही तरीके की तरफ रहनुमाई करे, यूं वो उसे जुल्म के ज़रिए मकसद के हसूल से रोक देगा। अलगर्ज उस पर वाजिब है कि जिस फेल की हुर्मत बादशाह को मालूम नहीं उसे बताए और जिन हराम कामों का वो इल्म होने के बावजूद मुर्तकिब है उससे खौफ दिलाए, और जिस तरीके से वो गाफिल है उसकी तरफ उस तरह रहनुमाई करे कि वो जुल्म से बाज रहे। ये 3 बातें हैं जो बादशाह में कलाम के मौसर होने की उम्मीद की सूरत में उस पर लाजिम हैं। नीज ये बातें हर उस शख्स पर भी लाजिम हैं जिसे उज़र या बगैर उज़र के बादशाह के पास जाने का इत्फाक हो। रज़ाए इलाही चाहने वाले आलिम का मखलूक पर रो। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन सालेह रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान करते हैं कि मैं हज़रत सैयदना हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में हाजिर था। उस वक़्त घर में एक चटाई थी जिस पर आप तशरीफ़ फरमा होते थे। तलावत के लिए एक कुरान पाक और एक बस्ता था जिसमें उनकी किताबें थी, और एक लोटा था जिससे वज़ू फरमाया करते थे। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा तो मोहम्मद बिन सुलेमान था। इजाज़त मिलने पर वो दाखिल हुआ और हजरात के सामने बैठ कर अर्ज़ गुजार हुआ कि क्या वजह है जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझ पर रोब तारी हो जाता है। हज़रत सैयदना हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, इसलिए कि मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, इन्नल आलिमा इज़ा अरादा बि इल्मिही वजहल्लाहि हाबहु कुल्लु शैइन व इन अरादा अन यकनिज़ा बिहिल कुनूज़ा हाबा मिन कुल्लि शैइन। यानी बेशक जब आलिम अपने इल्म से अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ा चाहता है तो हर चीज़ उससे डरती है, और जब वो उसके ज़रिए दौलत जमा करना चाहता है तो फिर वो हर चीज़ से डरता है। फिर मोहम्मद बिन सुलेमान ने आपकी खिदमत में 40,000 दिनार पेश करते हुए अर्ज़ की, ये रख लीजिए और अपनी ज़रूरियात में खर्च कीजिए।
आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ये माल उन लोगों को वापस कर दो जिन पर जुल्म करके तुमने लिया है। कहने लगा कि खुदा की कसम, मैंने आपको वही माल पेश किया है जो मुझे विरासत में मिला है। फरमाया मुझे इसकी हाजत नहीं। उसने अर्ज़ की इसे लेकर तकसीम फरमा दीजिए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया मुमकिन है मैं तकसीम करने में इंसाफ करूं तो जिसको नहीं मिला वो कहे कि आपने इंसाफ नहीं किया, तो यूं वो गुनाहगार होगा, लिहाजा उन्हें मुझसे दूर ही रखो। तीसरी हालत की तफसील और अहकाम, तुम बादशाहों को देखो ना वो तुम्हें देखें। तीसरी हालत यह है कि बादशाहों से अलग रहे कि ये उनको देखे ना वो उसे देखें। ये वाजिब है क्योंकि इसी में सलामती है। बस उनके जुल्म की वजह से उनसे नफरत का एतकाद रखना ज़रूरी है। उनकी दराजी उम्र की तमन्ना करे, ना उनकी तारीफ़ करे, ना उनके अहवाल की खबरगिरी करे और ना ही उनके साथ रहने वालों के करीब हो। नीज़ उनसे दूर होने की वजह से अगर कोई चीज़ ना पा सके तो उस पर अफसोस ना करे। ये उस सूरत में है जब उनका मामला उसके दिल में खटके, और अगर उनसे बिल्कुल गाफिल हो जाए तो बेहतर है। अगर उसके दिल में उनकी दुनियावी नेमतें खटकें तो सल्फ सालहीन रहमुल्लाह के दर्जा झैल फरामीन याद कर ले। चुनाचा अल्लाह वालों की याद रखने वाली बातें। हज़रत सैयदना हातिम असम अल्लाह रहमुल्लाह ने फरमाया करते थे, मेरे और बादशाहों के दरमियान एक दिन का फासला है, क्योंकि गुजरे हुए कल की लज्जत तो पाई नहीं जा सकती और आने वाले दिन के मामले में वो और मैं दोनों खौफजदा हैं, और बाकी बचा आज का दिन तो एक दिन में क्या हो सकता है। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मालदार भी खाते हैं और हम भी खाते हैं, वो भी पीते हैं और हम भी पीते हैं, वो भी पहनते हैं और हम भी पहनते हैं, और उनके पास जायद माल होता है जिसे वो देखते हैं और हम भी उनके साथ उस माल की तरफ देख लेते हैं, मगर ये कि उन पर उस माल का हिसाब है और हम उससे बरीउल ज़िम्मा होंगे। किसी के जुल्म और गुनाह पर इतला हो तो क्या करें? जो शख्स जालिम के जुल्म और गुनाहगार के गुनाह पर मतला हो तो चाहिए कि इल्म हो जाने की वजह से उसका मुकाम और मर्तबा उसके दिल में कम हो जाए। ये उस पर वाजिब है, क्योंकि जो शख्स किसी नापसंदीदा फेल का इर्तिकाब करता है तो लाजमी तौर पर दिल में उसका मुकाम कम हो जाता है, और मुनासिब ये है कि गुनाह से नफरत की जाए, क्योंकि वो या तो उससे गाफिल होता है, या उस पर राजी होता है, या नापसंद करता है। जानने के बावजूद गफलत नहीं हो सकती और राजी होने की कोई वजह नहीं, लिहाजा नफरत करना ज़रूरी हुआ। बस अल्लाह अज़्ज़ वजल के हक़ में कोताही करने वाले को ऐसा ही नापसंद करे जैसा अपने हक़ में कोताही करने वाले को बुरा जानता है। एक सवाल और उसका जवाब। नापसंद करना गैर इख्तियारी मामला है तो ये वाजिब कैसे होगा? इसका जवाब ये है कि बात ये नहीं है, क्योंकि मोहब्बत करने वाला तबई तौर पर उस चीज़ को नापसंद करता है जो महबूब को नापसंद और उसकी तबीयत के खिलाफ हो। तो जो अल्लाह अज़्ज़ वजल की नाफरमानी को बुरा नहीं जानता वो अल्लाह अज़्ज़ वजल से मोहब्बत नहीं करता, और अल्लाह अज़्ज़ वजल से मोहब्बत उसी शख्स को नहीं होती जिसे उसकी मार्फत नहीं होती। हालांकि उसकी मार्फत वाजिब है और अल्लाह अज़्ज़ वजल से मोहब्बत करना वाजिब है। लिहाजा जब उससे मोहब्बत है तो उसे नापसंद करे जो अल्लाह अज़्ज़ वजल को नापसंद हो, और उसे पसंद करे जो अल्लाह अज़्ज़ वजल को पसंद हो। इसकी तहकीक किताब अल मुहिब्बा वल रज़ा, मोहब्बत और रज़ा के बाब में आएगी। दूसरी फसल, इस्लाफ का बादशाहों के पास जाने का तरीका। एक सवाल और उसका जवाब। बुजुर्गान दीन रहमुल्लाह सलाम भी तो बादशाहों के पास जाते थे। उसका जवाब ये है कि हाँ, ये बात ठीक है, मगर उनसे जाने का तरीका सीख लो। चुनाचा सैयदना ताउस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिशाम को लाजवाब कर दिया। मनकूल है कि हिशाम बिन अब्दुल मल्क मक्का मुकरमा में हज करने के लिए आया। जब शहर में दाखिल हुआ तो कहने लगा कि किसी सहाबी को मेरे पास लाओ। कहा गया है खलीफा वो दुनिया से चले गए। कहा ताबईन में से किसी को ले आओ। तो वह हज़रत सैयदना ताउस यमानी कुदसरा को लाए। जब वो दाखिल हुए तो उन्होंने अपने नालैन उसके फर्श के किनारे पर उतार दिए और अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम नहीं किया, बस ये कहा ए हिशाम तुम पर सलामती हो, और उसकी कुनियत अबू सुलेमान जिक्र नहीं की, और उसके सामने बैठकर पूछा ए हिशाम कैसे हो? हिशाम को बहुत गुस्सा आया, यहाँ तक कि आपको कत्ल करने का इरादा किया। उससे कहा गया कि आप अल्लाह अज़्ज़ वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हरम में हैं और ये बात यानी उनका कत्ल मुमकिन नहीं है। खलीफा कहने लगा कि ए ताउस तुमने ये क्या किया? आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया मैंने क्या किया है? तो वो मजीद गुस्से हो गया और बोला तुमने अपने जूते मेरे फर्श के किनारे पर उतारे हैं और मेरी दस्तबोसी नहीं की, और अमीरुल मोमिनीन कहकर मुझे सलाम नहीं किया, और ना ही मेरी कुन्नियत बयान की है, और मेरी इजाज़त के बगैर मेरे सामने आकर बैठ गए हो और कह रहे हो कि हिशाम कैसे हो? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया जहाँ तक तुम्हारे फर्श के किनारे अपने नालैन उतारने का ताल्लुक है तो मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल के सामने रोज़ाना 5 वक्त उतारता हूँ। उसने ना कभी मुझे सज़ा दी है और ना ही मुझ पर गज़ब फरमाया। जहाँ तक तुम्हारी दस्तबोसी का ताल्लुक है तो मैंने खलीफा चारम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु को फरमाते सुना है कि हर मर्द के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी का हाथ चूमे
مگر یہ کہ اپنی بیوی کو شہوت سے اور اپنے بچے کو شفقت سے چوم سکتا ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا تو یہ اس لیے کہ تمام لوگ تمہارے امیر المومنین ہونے پر راضی نہیں ہیں، لہٰذا میں نے جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا، اور تمہارا یہ کہنا کہ میری کنیت کا ذکر نہیں کیا تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ جل نے اپنے انبیاء و اولیاء علیہم السلام کا نام لیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے داؤد، اے یحییٰ، اے عیسیٰ، اور اپنے دشمنوں کو کنیت دی ہے جیسے تبت یادا آبی لہب و تب، اور جہاں تک تمہارے سامنے آ کر بیٹھنے کا تعلق ہے تو اس کے متعلق میں نے خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے سنا ہے کہ جب تو کسی دوزخی کو دیکھنا چاہے تو ایسے شخص کو دیکھ لے جو بیٹھا ہو اور اس کے ارد گرد قوم کھڑی ہو۔ ہشام بن عبد الملک نے یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، مجھے نصیحت فرمائیے۔ فرمایا، میں نے خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو فرماتے سنا ہے کہ جہنم میں بڑی گردنوں والے اونٹوں کی مانند سانپ ہیں اور خچر کی طرح بچھو ہیں، جو ان حکمرانوں کو نگل جائیں گے جو اپنی رائے میں انصاف نہیں کرتے۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔